بہت پرانی بات ہے۔ شہر بغداد کی دور دراز کی بستی میں ایک بوڑھا غریب چکی بان رہتا تھا، جس نے اس فانی دنیا میں اپنی زندگی کی کئی بہاریں دیکھی تھیں اور زمانے کی گرم و سرد ہواؤں کے تھپیڑے برداشت کیے تھے۔ اس بوڑھے نے اپنی تمام عمر حلال روزی کمانے میں بسر کی تھی، جس کی وجہ سے اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، جو شمشاد کے درخت کی ٹہنیوں کی طرح بلند قامت اور صحت مند تھے۔ ایک دن باپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرے نور چشم اور پیارو، اس دنیا میں رہنے والے ہر شخص کی زندگی اچھی یا بری گزر جاتی ہے، اور جس طرح تمہیں معلوم ہے کہ موت ایک اونٹ ہے جو ہر دروازے پر سویا ہوا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ میری عمر کا سورج بھی لبے بام ہے، آج نہیں تو شاید کل اپنے اعمال کی گٹھڑی کندھے پر اٹھاؤں گا اور اس فانی دنیا سے کوچ کر کے عالم بقا میں پہنچ جاؤں گا۔ اگر سچ پوچھو تو مجھے اس سفر پر جانے یا دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن میری غمگینی کا سبب یہی چکی ہے۔ معلوم نہیں میرے بعد کیا ہوگا اور چکی پر کیا گزرے گی۔ چکی بان کے بیٹوں نے جب باپ کی باتیں سنی تو تینوں بیٹے بیک زبان کہنے لگے، ابا جان، آپ مطمئن رہیں، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ چکی کے پہیے کو گھماتے رہیں تاکہ گھر کے اخراجات کی گاڑی بھی چلتی رہے اور چکی کے نہ ہونے سے لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہ ہو۔ چکی بان نے محبت بھری نگاہوں سے اپنے بیٹوں کو دیکھا اور کہا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، اور تم بھی جانتے ہو کہ 200 باتیں آدھے عمل جتنی قیمت بھی نہیں پاتی، اس لیے کہ بات اور عمل کا درمیانی فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوتا ہے۔ کیا میں تم سے امید رکھوں اور مطمئن رہوں کہ تم واقعی میں میری باتوں پر عمل کرو گے؟ اگر تم تینوں بھائی مل کر اس چکی کے پہیے کو گھماتے رہے تو یقین مانو اسی میں تمہاری بہتری ہے، یا پھر جس بھائی کو مناسب سمجھو یہ چکی اس کے حوالے کر دو، ورنہ یاد رکھو کہ اگر اس چکی نے کام نہ کیا تو تم خود بھی بھوکے مرو گے اور دوسرے لوگ بھی تمہیں بددعائیں دیں گے۔ جب بوڑھے چکی بان نے اپنی بات ختم کی تو تینوں بیٹوں میں سے ہر ایک نے کہا، ابا جان، میں زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے چکی کا انتظام اچھی طرح سنبھال لوں گا۔ بوڑھے باپ نے بیٹوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور کہا، عقل سلیم ہی اسی بات کا فیصلہ کرے گی، میں دلیل کے بغیر کسی بیٹے کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تمہارا امتحان لیا جائے تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ تم میں سے کون شخص بہتر ہے اور احسن طریقے سے چکی کے پہیے کو گھما سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ تم تینوں بھائی امتحان میں کامیاب ہو سکو۔ بیٹوں نے جب امتحان کا نام سنا تو نہایت شوق سے تائید کی اور کہنے لگے، ابا جان، ہم ہر امتحان کے لیے تیار ہیں۔ بوڑھے باپ نے اپنے ہاتھ زانوں پر رکھے اور اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور دوسرے کمرے میں جا کر اخروٹوں کی 3 گٹھڑیاں اٹھا کر لایا اور بیٹوں کو دیکھ کر کہا، ان گٹھڑیوں میں اخروٹ ہیں، اس لیے آگے بڑھو اور ایک ایک گٹھڑی اٹھا لو، پھر میں تمہیں اگلے قدم کے متعلق بتاؤں گا۔ تینوں بیٹے آگے بڑھے اور ایک ایک گٹھڑی اٹھا لی، کیونکہ یہ گٹھڑیاں زیادہ وزنی نہ تھیں اور باپ تو تینوں گٹھڑیوں کو ایک ساتھ اٹھا لایا تھا۔ پھر ان کے باپ نے کہا، شہر جانے کے لیے اپنی سواری کے گدھے تیار کر لو اور زیادہ راہ کے لیے کچھ خوراک اور دیگر اخراجات کے لیے کچھ رقم بھی لے لو۔ تینوں بیٹوں نے خوشی خوشی اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور سفر کی تیاری کرتے ہوئے زیادہ راہ ساتھ لیا اور گدھوں پر سوار ہو کر چکی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ باپ بھی لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا آیا اور بیٹوں کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے بیٹو، تمہارا امتحان اب شروع ہوتا ہے، تم اب شہر کی طرف جاؤ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ تم خیریت سے جاؤ گے اور بعافیت واپس آؤ گے۔ شہر میں میرے 3 پرانے دوست ہیں، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے ایک ایک دوست کے پاس پہنچ جانا اور انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے پوچھنا کہ دنیا میں حلال رزق کیسے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھو اس سفر میں 3 دن سے زیادہ خرچ نہ ہو۔ ویسے اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر تم نے دیر کر دی تو باپ کی جگہ خالی پاؤ گے۔ بڑے بیٹے نے پوچھا، ابا جان، پھر ہمارے امتحان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ باپ نے بڑے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہماری پوری زندگی ایک امتحان ہے۔ یہ درست ہے کہ تمہارا یہ سفر دوسرے سفر کی طرح ایک چھوٹا سا امتحان ہے، لیکن ان چند دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس شخص کو کون سے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جلدی کرو اور اپنے بھائیوں کے ہمراہ نکل جاؤ، تمہارا کام زیادہ اور وقت کم ہے۔ بیٹوں نے جب باپ کی باتیں سنی تو اپنے اپنے گدھے پر سوار ہو گئے اور اپنا دل سفر کے سپرد کر دیا۔ اب وہ بغداد شہر کی طرف جا رہے تھے
लेकिन उनके दिलो दिमाग में तरह तरह के ख्यालात की आमदो रफ्त थी। यानी हर भाई सोच रहा था कि वो ही इम्तहान में पूरा उतरेगा और जब अपने बाप के पास पहुंचेगा तो चक्की का मालिक बन जाएगा। वो इन्हीं ख्यालात में खोए हुए थे और चल रहे थे कि अचानक मुड़कर देखा तो मालूम हुआ कि अपने गांव से काफ़ी दूर आ गए हैं और चक्की भी उनकी नज़र से ओझल हो गई है और जो चीज़ उनके सामने थी वो शहर का लंबा सफ़र है जिसके लिए उन्हें बस चलते रहना है। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद वो चलते चलते थक गए। अचानक उन्हें दूर से एक सायादार और आराम की जगह दिखाई दी। इसलिए मंझले भाई ने दूसरे भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, अब आराम का वक्त है, मेरे ख्याल से कुछ खा पी लें। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारे बदन की बाकी मांदा ताकत भी जाती रहेगी। दूसरे भाइयों ने भी इसकी तजवीज़ मान ली और अपने गधों से खाने का सामान उतारने लगे। इतने में अचानक बड़ा भाई चिल्लाया और फरियाद करते हुए कहने लगा, हाय अफसोस, तुमने देखा कि क्या हुआ। इसके दोनों भाई आगे बढ़े और पूछने लगे, क्या माजरा है, कौन सी आफत टूट पड़ी है। बड़े भाई ने अपने मशकीज़े की तरफ इशारा किया और कहा, रस्ते में इसका मुंह खुल गया है और कतरा कतरा करके तमाम पानी बह गया है। अब मैं परेशान हूं कि क्या करूं। छोटे भाई ने कहा, तुमने बड़ी लापरवाही से काम लिया है, अब तो हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बड़ा भाई कहने लगा, बड़ा अजीब सफ़र है, लेकिन सफ़र में ऐसे हादसात तो होते ही रहते हैं, इसलिए आओ बैठकर सोचते हैं। छोटे भाई ने मशकीज़ा उठाया और कहा, पहला और ज़रूरी काम यह है कि पानी की तलाश करें। बड़े भाई ने कहा, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी चाहिए, लेकिन पानी की तलाश में कौन जाएगा, लकड़ियाँ कौन जमा करेगा और कौन खाना पकाएगा। तीनों भाई खामोश थे और एक दूसरे को देख रहे थे। बड़े भाई ने उन्हें देखा तो कहा, मुश्किल और अहम काम लकड़ियाँ जमा करना है, यह काम मैं खुद ही अंजाम दूंगा। अगर लकड़ियाँ ना हुई तो हम खाना ना पका सकेंगे। ये कहकर बड़ा भाई अपनी जगह से उठकर लकड़ियाँ लाने के लिए चल पड़ा, लेकिन मंझले भाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहाड़ खोदना होगा और उसमें से लकड़ी निकाली जाए। मेरे ख्याल से मुश्किल काम खाना पकाना है। अगर लकड़ी और पानी मौजूद हों और पकाने वाला कोई ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे। मंझले भाई ने इतना ही कहा था कि अपनी जगह से उठा और पकाने के लिए चूल्हा बनाने में मशगूल हो गया। अब छोटा भाई रह गया था और इसके सामने खाली मशकीज़ा पड़ा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पानी कहाँ से लाए। बहरहाल इसने हिम्मत ना हारी और मशकीज़ा उठाकर पानी की तलाश में चल पड़ा। अपने दिल में कहने लगा, मेरे भाइयों ने अपना अपना काम संभाल लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं भी पानी लाने में कामयाब हो जाऊं। खाना पकाने और प्यास बुझाने के लिए हमें पानी की अशद ज़रूरत है। छोटे भाई ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और पहाड़ की तरफ चल पड़ा। छोटा भाई जानता था कि अक्सर पहाड़ों में चश्मे होते हैं और शायद वो भी किसी चश्मे पर पहुंच जाए। वो चलता रहा और चलता रहा। उसने पहाड़ी सिलसिले के चंद टीले अबूर किए, लेकिन जितना भी आगे गया उसे पानी का वजूद कहीं भी नजर ना आया। परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे पानी ही ना मिले और इसके भाई प्यास से जान दे दें और इसी तरह हमारा सफ़र यहीं तमाम हो जाए। फिर हम ना तो शहर जा सकेंगे और ना ही अपने बाप के पहलू में बैठना नसीब होगा। फिर वो कुछ देर के लिए एक चट्टान के साए में बैठ गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद इसने इरादा किया कि अपनी आंखें और कान अच्छी तरह खोले और पानी के चलने और फर की आवाज़ पर ध्यान दे। मुमकिन है उसे पानी नज़र आए या उसके चलने की आवाज़ सुनाई दे। इधर उधर फिरने से उसके हाथ कुछ ना आएगा। छोटे भाई के जहन में जब ये नई तजवीज़ आई तो अपनी जगह से उठा और दोबारा पानी की तलाश में पहाड़ी सिलसिलों में फिरने लगा। वो इसी तरह चल रहा था कि उसे दूर से पानी के कतरे के टपकने की आवाज़ आई। फिर इसने अपने कान खड़े किए और इसके आवाज़ के ताक़ुब में चल पड़ा। अभी वो ज़्यादा दूर ना गया होगा कि पानी के चश्मे पर पहुंच गया। चश्मे का पानी बहुत ही कम था। बहरहाल वो नहायत एहतियात से आगे बढ़ा और बड़ी मुश्किल से मशकीज़ा भरा और वापस चल पड़ा। अभी वो चंद कदम ही चला होगा कि एक पत्थर को फलांगते हुए फिसला और चारों शाने चित गिर पड़ा, जिससे इसके हाथ और बाजू शदीद जख्मी हो गए। फिर वो बड़ी मुश्किल से संभला और सबसे पहले मशकीज़े को देखा, जो अभी तक सही सलामत था। इसलिए खुश हुआ और अपने ज़ख्मों को भी ना सहलाया और आगे चल दिया ताकि जल्द से जल्द अपने भाइयों के पास पहुंच जाए। जब छोटा भाई वहां पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि दोनों बड़े भाई सोए हुए हैं, एक ऐसी नींद में कि गोया 7 बादशाहों को ख्वाब में देख रहे हैं। मंझले भाई की नींद बड़े भाई से ज़्यादा गहरी थी।
उसने अखरोटों की थैली भी खोली हुई थी, इसलिए छिलके इधर उधर बिखरे पड़े थे। छोटे भाई ने उन्हें बेदार किया। जैसे ही वो बेदार हुए, मशकीज़े को देखकर उस पर पल पड़े और घटाघट पानी पीने लगे। जब वो सैर हो गए तो एतराज़ करने लगे कि तुम्हें मालूम है कि तुम कहाँ रहे हो? जब हम प्यास और थकावट से मजबूर हो गए तो सो गए। अगरचे तुमने मशकीज़ा उठा लिया था, लेकिन असल में सैरो सेहत करते रहे होगे। दूसरे भाई ने कहा, अफसोस, पानी के लिए मैं खुद जाता तो साफ़ और पाकीज़ा पानी लाता और इतनी देर भी न लगाता, जबकि हालत यह है कि हमारा काफ़ी वक्त ज़ाया हो गया है। दोनों भाइयों के जी में जो कुछ आया अपनी अपनी कहते रहे और छोटा भाई खामोशी से सुनता रहा। इसके बाद उन्होंने खाना पकाया और खाने के बाद अपना सामान समेटा। इसके बाद उन्होंने दोबारा अपना सफ़र शुरू किया। तीनों भाई थके मांदे और भूखे प्यासे आखिरकार शहर बगदाद में पहुंच ही गए। छोटे भाई ने जूं ही शहर में कदम रखा तो कहने लगा, मैं तो सबसे पहले अपने वालिद के दोस्त के पास जाऊंगा और उसे वालिद का पैगाम पहुंचाऊंगा। मंझले भाई ने कहा, अभी किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं, सालन तो नहीं है कि ठंडा हो जाएगा। हम कल और परसों तक इसी शहर में हैं। अभी तो थकावट से हमारा बदन चूर है, इसलिए मैं तो पूरा दिन आज आराम करूंगा। बड़ा भाई कहने लगा, अगर मैं थका हुआ ना होता तो ज़रूर जाता, लेकिन इस वक्त मुझे आराम करना है और इसके बाद बाज़ार जाकर कुछ खरीदूंगा। आखिर कई सालों से मेरी ये ख्वाहिश थी कि एक जोड़ा खूबसूरत जूते खरीदूं। अगर मैं अब जूते ना खरीद सका तो शायद मुझे फिर कभी मौका ना मिलेगा। अगर मैं कल अपने बाप के दोस्त के पास ना जा सका तो परसों ज़रूर उनकी खिदमत में पहुंच जाऊंगा। ये सूरत हाल देखकर सिर्फ छोटा भाई ही रह गया था कि अपने भाइयों से पहले रवाना हो और बाप का पैगाम इसके दोस्त को पहुंचाए और इससे हलाल रोज़ी कमाने के लिए ज़राए दरियाफ्त करे। मंझला भाई दूसरे दिन सुबह अपने बाप के दोस्त के पास इसके घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया तो इसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और कहा, मेरे खामद की तबीयत नासाज थी, इसलिए हकीम से नुस्खा लाया था। अब वो इत्तार की दुकान से दवा लेने गया है। अगर वो ज़ोहर तक लौट आया तो तुम्हारी मुलाकात ज़रूर हो जाएगी। मंझला भाई निहायत बेसब्री और जल्दबाजी में था, इसलिए कहने लगा, इस शहर में मेरे और भी कई काम हैं, आज नहीं तो यकीनन कल तक मुलाकात हो जाएगी, इसलिए मैं जाता हूँ और कल तुलुए आफ्ताब के वक्त दोबारा आ जाऊँगा। इसने यही कहा और अपने भाइयों के पास सराय में आ गया। दूसरी तरफ बड़ा भाई जूते खरीदने के लिए गया हुआ था। जब वो जूते खरीदने के लिए बाजार पहुंचा तो जूतों के मोल तोल पूछने लगा। उसे महसूस हुआ कि इसके पास रकम कम है, इसलिए अपने भाइयों को तलाश करने लगा और अपनी मजबूरी उनसे बयान की। लेकिन इसके भाई भी इसकी तरह खाली हाथ थे, इसलिए उन्होंने अपने सर झुकाए और कुछ न कहा। बड़ा भाई जब अपने भाइयों से नाउमीद हो गया तो सोचने लगा कि अब तो मुझे अखरोटों की थैली फ़रोख्त करनी पड़ेगी ताकि जूते खरीद सकूं। फिर वो दोबारा बाज़ार गया और अखरोटों की थैली फ़रोख्त करके अपने पसंदीदा जूते खरीद लिए। उधर तुलुए आफ्ताब के वक्त दोबारा मंझला भाई अपने बाप के दोस्त के घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी इंतज़ार के बाद उसे कोई जवाब न मिला, इसलिए समझ गया कि साहिब खाना किसी काम से घर से बाहर गया हुआ है। इसलिए मंझले भाई के सफ़र का तीसरा दिन भी ख़त्म हो गया। अब तीनों भाई सराय में बैठे थे ताकि अगले दिन वापसी का सफ़र करें, इसलिए तरह तरह की बातें करते रहे और शहर में जो कुछ देखा और सुना एक दूसरे को बताने लगे। इतने में छोटे भाई ने कहा, अब हमारे लिए कौन सा काम बाकी रह गया है? मंझले भाई ने कहा, मेरे ज़िम्मा जो काम था मैंने पूरा कर लिया, सिर्फ अपने बाप का पैगाम नहीं पहुंचा सका, इसलिए कि बाप का दोस्त सफ़र पर गया हुआ है और अब मेरा कोई काम बाकी नहीं है। बड़े भाई ने कहा, अगर मुझसे पूछो तो मेरा भी कोई काम नहीं है जिसे मैं पूरा करूं। मैं तो यहाँ सिर्फ जूते खरीदने आया था जो कि मैंने ख़रीद लिए हैं और अखरोटों की थैली भी फ़रोख्त कर दी है। सिर्फ पैगाम पहुँचाना है और मैं ये काम कल अंजाम दे दूँगा। छोटे भाई ने कहा, हमें कल सुबह रवाना हो जाना चाहिए। तुम्हें याद होगा कि बाप ने कहा था अगर तुम लोग देर से लौटे तो शायद मुझे ना देख सकोगे। बड़ा भाई तो ऐसी बातें सुनने का मुंतज़िर था, इसलिए खुश हुआ और कहा, अच्छा हुआ कि तुमने याद दिला दिया, इसलिए अगर बाप ने पूछा तो कह दूंगा कि मेरा पहला और ज़रूरी काम पैगाम पहुंचाना था, लेकिन देर हो गई थी और तुम्हारा दोस्त सफ़र पर चला गया था, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि जल्द वापस आऊं और घर पहुंचूं। दूसरे दिन सुबह जब तीनों भाई उठे तो अपना सामान बांधा और घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बड़ा भाई कुछ ज़्यादा खुश था। वो अपनी हर बात के साथ कहता,
कि यकीनन बाप मेरी अक्ल समझ की दाद देगा और मेरे मुकाबले में तुमने जो काम किया है वो बेफ़ायदा और बेनतीजा है, इसलिए कि हमारे छोटे भाई ने तो अखरोटों को छुआ तक नहीं। अलबत्ता मंझले भाई ने अपनी थैली से चंद अखरोट खाए हैं और अपना जी बहलाया है, लेकिन मैंने तो उनसे पूरा फ़ायदा उठाया है और उन्हें फ़रोख्त करके जूते खरीदे हैं। हालांकि अक्लमंदी यही थी कि तुम भी ऐसा ही करते और कामयाबी से लौटते। मंझले भाई ने जब ये सुना तो हैरत और ताज्जुब से मुंह में उंगलियां दे दी और कहा, हाय अफसोस, मेरे दिल में ये ख्याल क्यों ना आया और मैंने भी ऐसा क्यों ना किया। यकीनन बाप तुम्हारी अक्लमंदी की बदौलत तुम्हें चक्की का मालिक बना देगा और हमें वहाँ भी शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। तीनों भाई अपनी अपनी बातों में सरगर्म थे और आखिरकार अपने गांव और घर पहुंच गए। जब बाप की खिदमत में हाजिर हुए तो बाप ने कहा, मेरे बेटो, अब जाओ और नहा धोकर साफ कपड़े पहन लो और कुछ देर आराम के बाद मेरे पास आ जाना। तीनों भाई चले गए और नहा धोकर साफ और उजले कपड़े पहनकर खाना खाया और ताज़ा दम हो गए। तब बाप की खिदमत में हाजिर हुए ताकि सफ़र के वाक़यात और हालात बताएं। बूढ़े बाप ने बेटों की तरफ देखा और कहा, अब बारी बारी अपना वाक़या बयान करो जो इस सफ़र में तुम्हें पेश आया। हर एक बेटे ने प्याज से लेकर लहसुन तक अपनी अपनी सरगुज़िश्त बयान की। बूढ़े बाप ने हर बेटे की बातें निहायत गौर से सुनी और कुछ देर सोचने के बाद छोटे बेटे की तरफ इशारा किया और कहा, मेरे बाद तुम्हारा छोटा भाई इस काबिल है कि चक्की के पहिए को घुमाता रहे। मंझले भाई ने अपने बाप के फैसले पर एतराज़ किया, लेकिन बूढ़े बाप ने गहरा सांस लिया और कहा, मेरे फैसले की पहली वजह यह है कि जब तुम रास्ते में भूख और प्यास से निढाल थे तो सबसे मुश्किल काम की अंजाम दही के लिए तुम्हारा छोटा भाई ही कमर बस्ता हुआ था और पानी की तलाश में निकला था और ज़ख्मी होने के बावजूद मशकीज़ा भर कर लाया। दूसरी वजह यह है कि मैंने जो अमानत तुझे दी थी उसने उसकी अच्छी तरह से हिफाजत की। मैंने ये तो नहीं कहा था कि अखरोटों को खा लेना या उन्हें बेच देना। और तीसरी और अहम वजह यह है कि इसने अपना फ़र्ज़ अहसन तरीके से निभाया है और इस पर अमल करते हुए शहर में दाखिल होते ही यानी पहली फुर्सत में मेरा पैगाम मेरे दोस्त को पहुंचाया और इससे हलाल रोज़ी हासिल करने के लिए तरीके दरियाफ्त किए। बस यही वजह है कि मैं तुम्हारे छोटे भाई को अपनी गैर मनकूला जायदाद यानी इस चक्की का मालिक बना रहा हूँ। ये इस काबिल है कि सख्त और मुश्किल काम अंजाम दे सकता है। ये इस चक्की के पहिए को अच्छी तरह घुमाएगा, लोगों की इमानतें यानी गंदम और आटे की हिफाजत करेगा और इसमें ख़यानत न करेगा और इस बात का भी ख्याल रखेगा कि अपने गाहकों से जो वादा करेगा उसे अच्छी तरह निभाएगा। इसलिए कोई भी शख्स इस पर बदअहदी या बददयानती का इल्ज़ाम आयद न कर सकेगा। इसलिए आज के बाद यही इस चक्की का मालिक है। बाप ने गहरा सांस लिया और दूसरे बेटों को देखते हुए कहने लगा, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो बेखतर कह सकते हो। क्या इस चक्की का हक तुम्हारे छोटे भाई का है या नहीं? बड़े और मंझले भाई को कुछ कहने की हिम्मत ना हुई, इसलिए बदस्तूर खामोश खड़े रहे और अपने छोटे भाई की कारकर्दगी पर तहसीन करने लगे। इसके बाद छोटा भाई कई साल तक चक्की के पहिए घुमाता रहा और उम्र भर लोगों की खिदमत करता रहा। वो कई साल इस फ़ानी दुनिया में रहा और इसके कुर्बो जवार में रहने वाले लोग इसकी दयानतदारी के मोतरिफ थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।